Hello students, how are you? Hmm? Okay, fine. सब ठीक चल रहा है ना? Okay. Hmm? Let's start to the next lecture for number 4, coordination compounds by Anand Coaching Classes Anand sir. Today we are learning classification of coordination compounds and its namings. It's a very important lecture to you in point of exam, your board exam as well as the NEET, IIT, JEE, NDE. इसमें से बहुत ऐसा क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन आपको एंट्रांस के लिए आते ही आते हैं नेमिंग के लिए राइट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेमिंग ऑफ द अल्कोहल्स नेमिंग ऑफ द aldehydes ketones carbonic acids in same way naming of the coordination compounds how they are names कैसा उनको क्लासिफाई किया जाता है how उनको नेम कैसा करेंगे these are we are learning here in this lesson so let's without wasting the times let's start this lecture और एक बात यहाँ पे आप लोग जितना भी है उतना कोऑपरेट करते रहो प्लस आपको any students for to join in our classes they can join by downloading app Anand Coaching Classes from Play Store then join in any class 10th or 12th or for NDA IIT or CET 2021 okay let's start to the lecture that is the classification of coordination compounds and namings classification of coordinate compounds okay see how this coordination compound ligands last time classification of ligand we learned classification of ligands are classified on the basis of their what is charge in the same way these are the coordination compound classified on the basis of first ligands on the basis of what is the ligands ligand means Lewis base Lewis acid Lewis base electron pair donor are called as a Lewis base electron pair acceptor are known as the Lewis acids ligands are electron pair donor that is a Lewis base Lewis base are known as the in coordination compound के language में उनको क्या बोलते हैं ligands they are called as a ligands on the basis of ligand they are classified into first the homoleptic homo यहाँ पे क्या चाहिए होमो चाहिए ओके होमोलेप्टिक लिगैंड्स होमो का मतलब क्या हो गया सिमिलर होमो मींस व्हाट इज अ सिमिलर for example if all the ligands attached to central metal atom they are belong to the d block elements they are the transition elements or the transition element they are from the d block elements if all the ligands attached to central metal atom are same for example CONH3 CONH3 here next यहाँ पे COFeK4FeCN6 mistake here this word Cl would not be here cancel to this Cl because CONH36 this only CONH36 this example only all these NH3 ammonium ammonia ions attached to the cobalt is a centimeter atom here 6Cn attached to Fe centimeter atom all the ligands are similar if the all ligands are similar is known as a homoleptic ligands what called homoleptic ligands here NH3 all NH3 ligands attached to the cobalt this is known as a homoleptic ligands what called homoleptic ligand next is a heteroleptic ligand hetero का मतलब difference homo means similar hetero means what is the difference heteroleptic ligands जैसा example NH3 भी है H2 भी है CN भी है Cl है these are the ligands attached to the centimeter atom different ligands attached to the centimeter atom is known as heteroleptic ligands what called heteroleptic ligands if the ligands attached to centimeter atom are different for example CONH3 4H2O2 Cl3 these ligands CONH3 NH3 4 ligands are there H2 2 ligands H2 and NH3 both are different ligands are there attached to the same central metal atom so these type of the ligand
this type of the coordination compound known as heteroleptic ligand coordination compounds. What called? Heteroleptic ligands. Next here, on the basis of the charge, ligands are positive charge, negative charge, and what's the neutral. Positive charge, negative charge, and what's the neutral. On the basis of this, they are classified into different. First, negative charge ligands. Negative charge ligand, which are the negative charge? Suppose Cn minus is called cyanide, is cyano or the cyanides. साइनाइड का नेमिंग आप नेमिंग में आगे पढ़ने वाले, तो यहाँ पे साइनाइड का क्या होने वाला है? साइनो. साइनाइड लिगेंड्स को नेमिंग में क्या आता है? इसको साइनो बोलते हैं. याद रखना आप लोग, नोट डाउन करो, आपको ये नेमिंग में भी काम आएगा. नेक्स्ट यस एनसी आइसोसाइनाइड. सीएन रहेगा तो साइनाइड होगा, एनसी रहेगा तो क्या होगा? आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनो बोलेंगे. आइसोसाइनिडो, साइनाइड, साइनो, साइनिडो, आइसोसाइनिडो. नेम, रिमेंबर दिस नेम. साइनाइड है, लेकिन साइनाइड में नेमिंग में आपको इसको क्या करना है? साइनो करके लिखना है, या साइनाइड. यहाँ पे आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड इज चेंज टू आइसोसाइनो या आइसोसाइनिडो. आपको नेमिंग में क्या होने वाले? यहाँ पे नेगेटिव लिगेंड्स, दीज आर द नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स. नेक्स्ट ओसीएन, साइनेट या साइनेटो, साइनोटो, साइनेटो, ओसीएन, CN, NC, OCN. नेक्स्ट इज ATE. नेमिंग में आप जब नॉमेनक्लेचर कर रहे पर्टिकुलर कंपाउंड का, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिगैंड्स है, तो वहां पे ATE का क्या होता है? ATO. देखो ATE का क्या होगा? ATO. साइनेटो, यहाँ पे A चाहिए, साइनेटो. AT into ATO. नेक्स्ट IT होगा तो ITO, IT into ITO. रिमेंबर दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट ID होगा तो IDO, ICN. नेक्स्ट एग्जांपल है ICN, थायोसाइनेट. ID, यहां पे देखो एग्जांपल में ID है, इसका क्या होगा? IDO हो गया, राइट. IT, AT का क्या हो गया? ATO. थायोसाइनेट, AT, AT का क्या होगा? NATO, ATO. थायोसाइनेट्स, SCN is a thiocyanate, thiocyaneto. Next NCS, isothiocyanate into isothiocyaneto. NAT into NATO, ATO, AT into ATO. Got it? Note down in notebook yours and then continue. सब लोग फटाफट अपने बुक में ये लिख के रखना, because it is a very very important to you in a nomenclature naming of the coordination compounds. Next see, H minus is hydride into hydrito, ID into IDO. D minus is deuterides या deuterido, deuterium, hydrogen, deuterium, tritium, the isotopes of the hydrogen, deuterides या deuterido. Next OH minus, hydroxide या hydroxo, नेमी hydroxide change to hydroxo. ये आपका changes है. These changes you should be note down. Sulfide to the sulfito, sulfide change to sulfito, sulfito. ITE, ITO, sulfito. SO32 minus, negative charge ligands. Next negative charge ligand is H2O32 minus, thiosulfate, thiosulfato, thiosulfate, thiosulfato. Changes देखो. Next है sulfide, H2 minus, negative charge ligand, sulfide या sulfido. Sulfide का क्या होने वाला है? sulfido. आपको ये याद करना है, बाइट करना है. This important to you in nomenclature. Okay, हो गया बाइट्स. फेंक दो इसको. NO32 minus nitrate is nitrato, nitrato, nitrate ATE, ATO. देखो some changes है यहाँ पे है. Nitrite, nitrito, NO2 minus, NO3 minus, nitrate, NO3 minus, NO2, nitrite, send to nitrito, nitrite to nitrito.
नेक्स्ट N3 माइनस इज एसाइड्स, नेमिंग इसको बोलेंगे H0, क्या आएगा H0। N3 माइनस है नाइट्रिडो, यहाँ पे माइनस N3 माइनस होगा, यहाँ पे N3 माइनस नाइट्रिडो CO32 माइनस कार्बोनेट या कार्बोनेटो, PO43 माइनस फॉस्फेटो, फटाफट नोट डाउन करो सब लोग। फॉस्फीटो, नॉमेनक्लेचर में ये बहुत कम। O2 माइनस ऑक्साइड टू द ऑक्सो, इसको आप याद करना है, एक टेबल बना के इसको रखो। चेंजेस क्या है नेमिंग में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेमिंग करेंगे तो वहां पे नेगेटिव आयन से नेगेटिव लिगेंड्स का नाम क्या होगा, चेंज होगा। जैसा कि ऑक्साइड है तो ऑक्साइड नहीं यूज करेंगे, वहां पे क्या लेंगे ऑक्सो। फॉस्फेट PO32 माइनस लिगेंड है तो उसका नाम क्या होगा, फॉस्फीटो होगा। PO43 माइनस है उसका नाम क्या होगा, फॉस्फेट नहीं, फॉस्फेट AT, ये देखो फॉस्फेट वही है। CO32 माइनस कार्बोनेट का कार्बोनेटो, N3 माइनस का नाइट्राइड का नाइट्रिडो, N3 का एसिड का एसिडो। सीधा नेक्स्ट O2 माइनस पेरोक्साइड टू पेरोक्सो, फ्लोराइड का फ्लोरो, जितना भी है सब जितना हो सके उतना पूरा दिया आपको। Cl माइनस क्लोराइड का क्लोरो, Br माइनस का ब्रोमाइड का ब्रोमो, और आयोडीन का क्या होगा आयोडो। नेक्स्ट न्यूट्रल लिगैंड, न्यूट्रल मींस जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल NH3 H2O, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दे आर द न्यूट्रल लिगैंड्स। H2O इसका नाम क्या है एक्वा वाटर। CO कार्बोनिल, यहाँ पे O भी कैपिटल चाहिए, यहाँ पे इसको कैपिटल करना कार्बोनिल, ये दिस आर द न्यूट्रल लिगैंड्स। और एक CS थायोकार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल। NH3 इज अमाइन, इनका नेमिंग में कुछ चेंज नहीं है, जहां पे नेमिंग में चेंज है उसको मैंने आपको ऑर्डर दिया है, राइट। एक्वा H2O रहेगा, CO कार्बोनिल है, CS क्या है थायोकार्बोनिल, NH3 अमाइन। नेक्स्ट PS3 इज अ फॉस्फाइन, या ऑल दे आर द न्यूट्रल चार्ज लिगैंड्स, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दीज लिगैंड्स आर द न्यूट्रल नो एनी चार्ज। नाइट्रोसिल NO, pause the video and copy it in notebook yours. Next, positive charge ligands, triple bond C, triple bond O carries what is the plus charge, here O also share its lone pair up and form bond get positive charge, means oxygen यहाँ पे any atom losing the electron then it get the charge, this charge is a positive charge, and any atom gain the electron get what a charge is what negative charge, means here O also share its lone pair up and form bond to get positive charge, or it is a from the positive charge O plus. Triple bond C, yes, sulfur here, donate electrons. Complex sign, what is the complex sign here? Complex ion means what? Complex sign is a more or less stable charge aggregate form when and is mostly of metal is directly linked to the group of neutral molecules or is ion. So the ligand is attached to the center meta atom or any species attached directly attached to center meta atom and which are written in square bracket. इसका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, उसके ऊपर क्या होगा चार्ज, एंड दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज लेस more or less stable depends upon its stability, depends upon its charge aggregate, total charge उसके ऊपर कितना है, how much charge is there on the complex sign, this decide is a more or less stable। और ये हम स्टेबिलिटी डिफरेंट थ्योरी के थ्रू हम क्या करने वाले आगे पढ़ने वाले हैं, ओके। VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ऐसे बहुत सारी थ्योरी है, तो वहां पे हम क्या करने वाले, इसको कॉम्प्लेक्स साइन हो उसका स्टेबिलिटी क्या है, कितना स्टेबल है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, वो सब हम क्या करने वाले चेक करने वाले। सो इज अ कॉम्प्लेक्स आयन मींस आयन विच हैव द चार्ज, मींस इज अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी जहां पे सेंटीमीटर एटम रहेगा, उसके साथ कौन रहेगा डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड्स, उनके ऊपर क्या आएगा चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल हियर FeCN6, हियर CN cyanide ligands attach the ferrous centimeter atom and carries a 3 minus charge, this is called the complex ion, is example for the complex ion। Another example is here
CONH363 minus. CONH363 minus is also complex sign. इसको क्या बोलेंगे? Complex sign. पूरा FeCN6 है, यहाँ पे CONH363 minus है, यहाँ पे minus carry charge, complex sign. Next is a CONH342 plus, maybe positive or negative. It must carry the charge. Charge aggregate. Form when mostly of metal is directly linked to the group of neutral molecule or the ions. Next, coordination entity. What is a coordination entity? So the definition of the coordinate entity. Coordinate entity constitutes central metal atom, ion or fixed number of the ion or the molecule. Means central metal atom and जो complex ion आपने देखा था, वहाँ पे central metal atom और उसके साथ कौन है? Ligand attached. Ligands attached or directly attach the ligands. The ligands are the fixed number or ion or the molecule. This whole compound, this is known as a complex, is known as a coordination entity. The coordinate entity a constituent to central metal atom or ion to fixed number of ions or the molecules. For example, here CO, Cl3, NH3, NH3 and Cl both are different. Is a hetero, different type of ligands attached to the same central metal atom CO, and is a no any charge because NH3 is a neutral and Cl is a negative charge ligand, and charge carried by the CO is a oxidation number of the CO is a +3, and this is a Cl carry each chlorine carries what? Minus charge, -3 and +3 will be cancelled, and no any charge remain on this कोऑर्डिनेशन एंटिटी. देखो यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे NH3 है. एक्चुअली कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है. दैट इज यहाँ पे +3 चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन है, दिस क्लोरीन अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन इज परफॉर्मिंग टू फंक्शन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंस. क्योंकि क्लोरीन क्या हो गया? अंदर आ गया. एक्चुअली यहाँ पे NH कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए. इंस्टेड ऑफ 6 कितना आ गया? यहाँ पे 3 है. तो रिमेनिंग 3 का जो काम है फंक्शन को कंप्लीट करेगा. Cl means 3Cl came inside inner sphere and complete the tendency of the coordination number. Coordination number कोबाल्ट का यहाँ पे कितना है? 6 है. To complete the 6, it need what is the 6 ligands, and the 6 ligand how we get? NH3 3 and Cl3. Cl जो एक्चुअली क्या है? नेगेटिव है, जो आउटर स्पेयर में रहता है वो क्या आ गया? इनर स्पेयर. And in this way, this CO, Cl3, NH3 3, there is no any charge. Another example here, NiCO4. NiCO4. This 4 is written outside. Sorry. This 4 is wrong to be here. यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए. This 4 will be outside. 4 यहाँ पे चाहिए. 4 ligands are there. What is NiCO4? Means CO is also neutral ligands, and this attached to the nickels. Sorry, negative charge ligands is attached to what is a nickel. Means the coordination entity. Means coordinate entity constitutes to central metal atom or ion to fixed number of ions or molecule. Means here CO fixed number to the Ni. NH3 and Cl fixed number with a cobalt. Cobalt का 6 है तो 6 ही चाहिए वहाँ पे. Next is a coordination sphere. Outer sphere, inner sphere according to Werner's theory, right? Means central metal atom or ion or the coordinating group attached to is are written inside square bracket, and each together is called the coordination sphere. यानी पूरा इसके अंदर जो ब्रैकेट जो में रेक्टेंगल ब्रैकेट जो दिख रहा है उसके अंदर जो भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी पूरा चार्ज के साथ, चार्ज भी रहेगा तो उसके साथ पूरा क्या होगा? ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये हो. फॉर एग्जांपल Fe(CN6) is known as a coordination sphere. The central metal atom or ion or the coordinating group attached to it are written inside square bracket, and each together is called as a coordination sphere. Means Fe(CN6) is a coordination sphere here. And here K4 is called as a counter ions. जो बाहर है उसको बोलेंगे counter ion. When all the ligands are removed along with the electron pairs shared with the metal atom,
then the charge on centimeter atom is called oxidation number. Is also coordination number, oxidation number. These two topic here important. Coordination number or क्या oxidation number. Coordination number means coordination number is a number of ligands directly attached to the central metal atom. This gives the coordination number. And oxidation number we can calculate by using is a charge. कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कितना चार्ज है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं. When all the ligands are removed along with the electron pair share with the metal atom, then the charge on the centimeter atom is remain. This charge is indicate that oxidation number. Suppose CO, यहाँ पे CO है, CO के ऊपर बाहर 3+3 चार्ज दिया है, तो उसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3. Na यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना उसका 4 हो गया. इट इज डिपेंड बाय द रोमन न्यूमरल्स. ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करने के लिए हमें क्या करना है, ब्रैकेट डालना है. ब्रैकेट के अंदर क्या लिख रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो रोमन नंबर 1, 2 है तो रोमन नंबर 2, 3 है तो रोमन नंबर क्या आएगा 3. रोमन में लिखना है. अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा फाइंड करने का वो भी सीखेंगे. K3FeCN6. यहाँ पे K is a counter ion, Fe is a centimeter atom, Cn is what is the ligand. How many ligands are there? 6 ligands, right? Centimeter atom में यहाँ पे कौन है, Fe है, तो Fe centimeter atom. Next ligand कौन है यहाँ पे, Cn. counter है कौन है, K. And then oxidation number, suppose oxidation number हमें जिसका फाइंड करना है उसका क्या लेना है, X लेना है. क्या लेना है, X. अभी K counter ion is a belongs to is a first periodic table, first group, second group. Potassium belong to the first group. Let oxidation number of the Fe is X लिया यहाँ पे. Cn, each Cn carries how many Fe, 3 into 1 plus X, and Cn is a negative charge ligands. जो आपने example में आपने minus Cn carry negative charge. Cn cyanide is a negative charge ligand. इसके ऊपर charge कितना होता है, -1. Cn -1 into how many ligands are 6 ligands. Total charge here what is a 0, right? Means 3 into 1. पोटेशियम का लिखा, Fe का मालूम नहीं आपको, X लिखा, और Cn का लिखा -1 into what is a 6. टोटल आप सिंप्लीफाई करेंगे, then you got answer here X is equal to 3. That is the oxidation number of central metal atom here is what is a 3. क्या होगा, oxidation number of central metal atom is what, 3. वो कैसे लिखना है आपको, रोमन न्यूमरल में लिखना है. कैसे लिखना है, रोमन न्यूमरल्स. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe is 3. नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर En, ethylene diamines. Ethylene diamines, NH2 CH2 CH2 NH2. ओके. लास्ट लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर्स इज बाइडेंटेट लिगेंड्स, दोनों साइड से उसके टीथ है, अटैच कर सकता है एक ही कंपाउंड को. यहाँ में कोबाल्ट है, कोबाल्ट का CO सेंटीमीटर एटम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है अभी 6. सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है 6. अभी 6 कैसा होगा, देखो क्लोरीन 2 आगे, एक क्लोरीन को एक टीथ है तो 2 क्लोरीन 2 हो गया. अभी बचे कितने 4. En कितने 2 है. 1 En has 2 teeth, 2 attachments, and this 2 attachment and 2 En that is a 4 हो गया, ये 4 और ये क्लोरीन के 2, टोटल 6 हो गया. कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6. कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. कैसा कंप्लीट हो गया, En इथिलीन डायमाइन कितना हो गया 1 En मींस व्हाट इज 2 टीथ, 2 अटैचमेंट्स, दोनों साइड से वो अटैच करता है. क्रैप लाइक ऐसा देखो, ये साइड से ऐसा अटैचमेंट है दोनों साइड से. एंड Cl का कितना एक ही है, तो Cl1 2 Cl2 हो गया, और En2 है तो 4 हो गया, 4 + 2 कितना हो गया 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दैट इज अ डायरेक्ट अटैचमेंट टू द कोबाल्ट इज 6. सेम यहाँ पे लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट बी X. देन अकॉर्डिंग हियर Cl, यहाँ पे देखो कोबाल्ट En है, X 0 plus En is what is a neutral. Cl is a -3 is equal to what is a 0. क्लोरीन कितने यहाँ पे 3 है, तो ईच क्लोरीन का कैरीज वो माइनस चार्ज, टोटल इज -3. X is equal to X minus 3 is equal to 0. X is equal to 3. The coordination number of cobalt in the central metal atom is what is a 3.
coordination number of cobalt is a +3. Note down करो video pause करके. Okay. Next Cr Na3 6 NO3 3. Here center में atom कौन है? Chromium Cr. Ligand कौन है यहाँ पे? Na3 6 ligands है. NO3 कितने हैं यहाँ पे? 3. Each x is equal to what? X. Let the coordination oxidation number of the chromium be x. Na3 carries 0 charge, NO3 carries minus charge, NO3 is a negative charge ligand, Na3 was a neutral, so 0 into 6 and minus 1 into 3. Total answer is x is equal to 3, that is the oxidation number of chromium here is equal to 3. कितना आ गया? Oxidation number of Cr is equal to 3, that is the oxidation number is also called as the oxidation state. The oxidation state of Cr is equal to +3. Next example, RuNH3 Cl2, NH3 neutral ligand, H2 is a neutral ligand, chlorine carries minus charge, so X plus यहाँ पे X लिया, phi जीरो वाटर का 0 है, right ना? This what Ru का X NH3 phi into 0 and H2 only one H2 is neutral, and what Cl is Cl carries a minus 1 and 2 chlorines are there -2. So value of the x will be, by simplifying, what you got? The value of x is equal to, here x is equal to 2. Means oxidation number of the Ru is equal to what is a 2. रोमन नंबर में आपको लिखना है वहां पे, बुक में आपको नोट डाउन करना है वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 2. FeCO5 यहाँ पे CO कार्बोनिल्स, क्या है? कार्बोनिल, दैट इज अ लिगैंड, 5 लिगैंड्स आर देयर. अब इसका Fe का हमें क्या करना है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. देखो Fe यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 0, क्योंकि CO न्यूट्रल पूरा है तो 0 हो गया. x plus 0 into 5 is equal to 0. Oxidation state of the Fe is 0. Next example number 6, यहाँ पे K4 counter ion, center metal atom is Fe, Cn is cyanide, Cn is carry minus charge. So 1 into 4 plus x plus minus 1 into 6, that is x is equal to what? X is equal to 2, that is oxidation number of ferrous is what is a +2. You have to note down there oxidation number of ferrous is a +2. Oxidation number of ferrous is a +2. यहाँ पे लिखना x is equal to +2. Right here x is equal to +2. X is equal to क्या लिया? Answer is x is equal to what? 2. That is oxidation number. इसे लिखना oxidation state या oxidation number O dot yes oxidation state is equal to कितना आएगा यहाँ पे? इज इक्वल टू 2. कैसा आएगा? रोमन नंबर में 2 आना चाहिए. ओके, ऑक्सीजन स्टेट इज इक्वल टू 2. The next one more example here, COH2OCN En2. This is a heterolytic ligands. 3 ligands are there, different ligand, H2O, Cn, En. En is a bidentate, Cn is a unidentates, monodentate, H2 is a monodentate, right? But H2O charge 0, Cn charge minus, En is a neutral. En, ethylene diamine, is a neutral ligands. Okay, let's find the oxidation number of the cobalt. X plus 0 minus 1, right? Cn minus and 2 into 0 is equal to total charge. What is that? 2. So is equal to 2. So simplifying, you got x is equal to 2 plus 1, 3. As the oxidation state, oxidation number of central metal atom is equal to +3. That is a 3. Roman number right is a 3. Next है COBr En2. इसका आप निकाल सकते हो. Okay, let's pause the video and let's find and check the answer. COBr to En2. इसका आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. निकाल लिया. ओके, चेक करो इज इट राइट और रॉन्ग. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द CO is what is a +3. कितना गया? +3. नेक्स्ट PtCl4 2 minus x plus 4 into -1 is equal to -2. The x minus 4 is equal to -2. X is equal to -2 plus 4 is equal, x is equal to what is a
+2. Oxidation state of platinum, that is a 2, oxidation number is equal to 2. Next K3FeCN6 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे oxidation number Fe, Cn is sign negative, K3 potassium belong to the first group, उसका oxidation number all of you know, oxidation number of the potassium is +1, belong to the, what is the group number 1, that's why it is a +1. क्या गया +1. Oxidation number of potassium is a +1, is a 1 into 3. जो purity फर्स्ट pure tables ऑक्सीजन नंबर रेडॉक्स रिएक्शन, इसके पहले वाला लेक्चर जो आपने देखा होगा रेडॉक्स रिएक्शन, वहां पे है हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, वहां पे रूल्स सब दिए हुए हैं. सो वॉच दिस वीडियो, जिसने देखा नहीं होगा वो देख सकते हैं. रेडॉक्स रिएक्शन में 4 लेक्चर बना दिया, 4 लेक्चर आप वहां पे देख सकते हो. उसमें से बहुत सारा बैलेंसिंग में वहां पे बताया है. रेडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर कैसा फाइंड करने का, ऑक्सीजन नंबर जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो स्ट्रक्चर वाले में ऑक्सीजन नंबर कैसा फाइंड करने का, दिस ऑल दिस एक्सप्लेन इन अ रेडॉक्स रिएक्शन. सो प्लीज वॉच इट. So the next year x is equal to 3, that is the oxidation number of central metal atom, that is a ferrous, is equal to 3. सबको समझ में आ रहा है. एग्जाम्पल आपको कॉपी करना है. These are the important, these are the exam in a entrance exam, point of entrance exam, these are the very very important to you. ओके सेम यहाँ पे भी देखो x इक्वल 3 आ गया. ऑक्सीजन नंबर ऑफ द क्रोमियम हियर इज अ +3. ये आपको आंसर कैसे लिखना है, क्रोमियम Cr ऑक्सीजन नंबर +3, ये आपको नॉमेनक्लेचर में लिखना है. नॉमेनक्लेचर में वहां पे दिया नहीं होता ऑक्सीडेशन नंबर, यू हैव टू फाइंड इट डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस मेथड, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू. सो पे अटेंशन, डोंट बी स्किप द वीडियोस, each and every point you should be watch, don't skip, is a very very important to you. आप skip करेंगे आगे जाके नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो वहां पे आपको समझ नहीं आएगा ये कैसा आ गया. तो इसके लिए पहले आपको मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सिखा रहा हूँ कि इतना 11 एग्जांपल है, 1-2 एग्जांपल में मैं बोल सकता, लेकिन आपका प्रैक्टिस होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग हियर बाय टेकिंग मोर एंड मोर एग्जांपल. बहुत सारे आपको नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स मालूम नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल नहीं, उसका भी मैंने एग्जांपल ऑलरेडी आपको दिया है. That's why all of you watch PIITs, remember this. आप अभी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये याद होना चाहिए नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसके बाद चार्ज कितना है, इसका ऑक्सीजन नंबर कैसा आ गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये आपको मालूम होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग मोर एंड मोर एग्जांपल टू यू. आपको टेक्स्ट बुक में इतना सारा एग्जांपल मिलेगा नहीं. ओके लेट्स सी नेक्स्ट. थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्ट, यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन किया था कि सॉल्ट 3 सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्ट. Simple salt, double salt, they are dissolved directly into the water, but coordination compounds, the ligand which are directly attached to the central metal atom, they are not easily dissolved. It is a strongly attached, firmly attached, that's why they not dissolve. This is a distinguished given here, so you copy it in notebook yours. What is the point here? First, double salts are molecular or addition compound that exist only in a solid state and dissociate into ions in aqueous solution or any other solvents, right? And coordination compounds are the molecular or addition compound that exist in the solid state as well as dissolve in water and in any other solvent. But coordination compound ligand which are directly attached, they are not easily dissolved. Properties of double salts are the essentially same those of the constituent ions. All of you read this and copy in your notebooks. This will be important for your board exam, for distinguish between the double salt and a coordination compound salt. Okay. Next is a effective atomic number, EAN. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये भी क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा, अभी ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड हाउ टू फाइंड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इसमें भी asked for 2 marks question here. Find the effective atomic number of the central metal atom. Effective atomic number, see here, EAN is the total number of electron present around the central metal atom in a compounds. जो आपके पास कंपाउंड दिया, कॉम्प्लेक्स दिया, उसमें कितने हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स जो भी है या कंपाउंड जो है, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम उसके राउंड में कितने इलेक्ट्रॉन है,
This electron means what? Effective atomic number. Do you understand this? What is EAN? EAN, effective atomic number. Effective atomic number means number of electron present around the central metal atom in a complex. कॉम्प्लेक्स जो भी है तो कॉम्प्लेक्स में जहां कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल एटम के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर अराउंड इट्स, दिस नंबर इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. व्हाट इट्स, समझ में आ रहा है सबको? Next, it is the sum of electron of central metal atom and electrons of ligands. Because central atom को इलेक्ट्रॉन कौन देता है? Ligands. Because central metal atom is belong to d block element, transition element. Ligand is a donating pair of electron. Because central metal atom is a Lewis acid and ligands are Lewis base. So Lewis base donate the pair of electron. But both the electron who donate here? Ligands. तो सेंट्रल मेटल एटम के राउंड में इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले? बढ़ने वाले. इलेक्ट्रॉन क्राउड उसका बढ़ने वाला है. और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो निकालना, मतलब ही क्या हो गया? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. That is the sum of electrons of central metal atom and electrons of ligands. Sum of electrons of central metal atom and electrons of ligand. Sum of electrons of central metal atom and electrons of ligand. So electrons of NH3 है. NH3 कितना इलेक्ट्रॉन देगा? एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट. और 6 NH3 are there donating what is a 12 electron, right? Means it is a sum of electrons of central metal atom. Central metal atom सब कोबाल्ट, कोबाल्ट के पास इलेक्ट्रॉन 3 है. और सेंट्रल एटम सब लिगैंड है NH3, कितना दिया? 12 इलेक्ट्रॉन दिया. एक 1 NH3 गिव 2 इलेक्ट्रॉन. इन दिस 6 NH3 गिव 12 इलेक्ट्रॉन. 12 and 3 कितना हो गया? 15. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना हो गया? 15. दैट्स द EAN is the total number of electron present around the central metal atom in a complex is called as the effective atomic number. It's a very, very important. Understand, please understand this. It is a formula. What is the formula here? EAN is equal to Z minus X plus Y. EAN, effective atomic number, is equal to Z minus X plus Y. अब ये कैसा आ गया फॉर्मूला? यही फॉर्मूला क्यों लिया? Let's see. What is the Z? What is the X? What is the Y? Meaning of this. Here, Z is atomic number of central metal atom. So you must be know the atomic number of the each and every metal atom, central metal atom. That's why you should be by at the periodic table. In a D block element, different elements are there. हर एक atomic number आपको याद चाहिए. You are in a 12th standard. You in the competitive exam there. So all of you must be know the periodic table. Periodic table element है, उनके atomic number क्या है? At least atomic number तो आपको आना चाहिए, उसका configuration भी आना चाहिए. So please, किसी ने नहीं किया होगा प्रैक्टिस कर लो. अब जितनी भी एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेंटर में एटम है, यहाँ पे डी ब्लॉक के सबका एटॉमिक नंबर बाय ऐड करके रखना. कुछ का मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करो. वहां से आपको एटॉमिक नंबर वहां पे लिखो और याद करो उसको. एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल कोबाल्ट है, क्रोमियम, जिंक है, फेरस है, इनके तो एटलीस्ट एटॉमिक नंबर आपको याद रहने चाहिए. ओके, सो इट कैन बी अंडरस्टैंड इज अ very clearly. So Z is equal to atomic number of central metal atom. Atomic number means what? Why this needed? Z क्यों लिया? Because Z indicate that number of electron. Atomic number means what is number of electron or number of proton. Proton number is equal to what? Electron. Proton present in center at the center nucleus and electron around the nucleus. जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन. That's why Z is a necessary here. Atomic number of the central metal atom. Next, X, number of electron loose by central metal atom to form its ion. Suppose cobalt forming was the CO3 plus. उसने क्या किया? CO3 plus form किया. अभी कैसा फॉर्म करेगा ये? CO का सपोज नंबर कितना? सपोज 30 है. कितना? 30. CO का CO3 plus होगा, कभी होगा? उसमें 3 इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तो Mg है. Mg का एटॉमिक मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना है? 12. फिर Mg लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, तो Mg के ऊपर चार्ज कितना आता है? Mg2 प्लस. तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स. Mg atom number 12, that electrons are 12 there, then is losing 2 electron, then Mg2 plus form. That time number of electron, remaining number of electron is equal to 10. कितने बचेंगे इसके अंदर? 10 ही रहेंगे. इसका मतलब X is the number of electron lost by central metal atom to form its ion. Means central metal atom यहाँ पे जब आता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आता था. कि लास्ट एग्जांपल फेरस लेगा, वहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन लूज किया नहीं था.
तो इसीलिए वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया उसका 0। लेकिन कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन 3 लूज करता है तो उसके बाद चार्ज कितना था +3, तो वो सेटिस्फाई कौन करता है, क्लोरीन आके करता है, राइट। वहां पे क्लोरीन आया था, एक क्लोरीन निगेटिव, अनदर क्लोरीन निगेटिव, अनदर क्लोरीन निगेटिव, 3 निगेटिव आ गए और ये 3 पॉजिटिव, बैलेंस हो गया, स्टेबल हो गया कंपाउंड्स। That's why X is equal to number of electron lost by central metal atom to form its ion or atomic number of the central metal atom। यानी ये सेंट्रल एटम जब है तब उसका एटम नंबर कितना होगा, पहले उसका 27 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या 3 लूज किया तो अभी कितना बन गया 24, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम जब बन गया तभी उसका एटॉमिक नंबर कितना है 24। एक्चुअली कितना है इसका 27 था, लेकिन अभी कितना हो गया 24। व्हाई, बिकॉज इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन एंड देन ही प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तभी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी आ गया, तभी उसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसलिए x जरूरी है। नेक्स्ट y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स, ये क्या होगा प्लस, अभी ये क्या हो गया माइनस क्या हो गया, z उसका क्या हो गया एटॉमिक नंबर, सपोज 30 उसके पास इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज सपोज 3 है, और लिगेंड ने कितने दिए सपोज 12 दिए, तो कितना हो गया 30 माइनस 3 इज इक्वल 27, 27 प्लस हम क्या करेंगे 12 करेंगे, 27 प्लस 12 39 हो गया, मींस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दैट कंपाउंड ऑफ दैट सेंट्रल मेटल एटम कितना हो गया 39। समझ में आ रही बात, देखो फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, एटॉमिक नंबर ऑफ द कोबाल्ट इज 30, बट when it came in central metal as a central metal atom is loses 3 electron, कितना 3 electron loses, how many 3 electron, इस कितना हो गया अभी 27, z कितना था 30, loses electron 3 and NH3 1 NH3 donate 2 electron, in this way 6 NH3 loses donate what 12 electron, means plus क्या होगा 12, इस 30 minus 3 plus 12, 30 minus 3 कितना हो गया 27 प्लस 12 करो कितना होता है 39, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया 39। आ गई समझ में आपको बात, क्या बोल रहा है समझ में आ रहा है आपको, मीन सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे जब प्रेजेंट होगा तो उसके राउंड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये आपको फाइंड करना है, उसको ही हम क्या बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जब सेंट्रल मेटल आएगा तो क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करके आएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करके आएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कभी बड़े डिक्रीजेस और विल व्हाट इंक्रीजेस, मोस्टली यहाँ पे इंक्रीज होता है, जो उसका एटॉमिक नंबर है उससे तो बढ़ेंगे ही, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दोनों कौन लिगेंड्स, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होने वाला है बढ़ने वाला है, इलेक्ट्रॉन का क्राउड इसके राउंड में क्या होने वाला है बढ़ने वाला है, राइट। सेम दिस, now this example is K3, K3 is a potassium is a counterion, central metal atom is a ferrous and Cn is a cyanide, ligand Cn, is Cn donate 2 electron, now Z of the Fe is equal to 26, what is the Z of the Fe is equal to what 26, now x is equal to 3, अभी x आपने कैसा फाइंड किया, इसके पहले आपको बताया मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा फाइंड करना है, बताया ना, इससे पहले एग्जांपल हो गया बराबर, k कितना है +3, Cn कितना है साइनाइड कितना हो गया, साइनाइड कितना -1 होता है, राइट। देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, k का कितना हो गया 3, ये 3 लिया, ओके। इसका सपोज आपको Fe का मालूम नहीं है, Fe का क्या लिया x, और टेक व्हाट इज इट इज x प्लस, अभी ये 6 माइनस है तो Cn का कितना -6 होगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, x कितना आएगा, x इज इक्वल टू कितना आने वाला है, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू बराबर लिखा नहीं है, अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स इज इक्वल टू व्हाट 3, यानी x वाले यहाँ पे आपको कितना मिला 3 मिला, राइट। समझेगा, x नथिंग बट इट इज व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या है वो ऑक्सीडेशन स्टेट, x इज नथिंग बट इज ऑक्सीडेशन स्टेट 3, आ रहा है समझ में, ओके। नेक्स्ट सीम, नाउ फॉर्मूला y इज इक्वल टू, लिगैंड कितने Cn कितने यहाँ पे 6 लिगैंड, ईच लिगैंड डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, मींस कितने हो गए, वैल्यू ऑफ द y इज इक्वल टू 12, पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बुक में मिलेगा नहीं, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो भी वहां पे आपको मिलेगा नहीं, सो पे अटेंशन हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। So effective atomic number of the central metal atom ferrous is equal to 26 minus 3 plus 12, that is equal to 38 minus 3, 26 plus 12 दोनों का एडिंग हो गया,
38 minus 3 is equal to what? 35. The effective atomic number of ferrous, that is a central atom, is a 35. 35 electrons are around the ferrous. When ferrous is present as a central matter atom in this compound, that time 35 electrons are there crowded. Electron crowd कितना होगा? 35. Getting it? सबको समझ में आ रहा है? नहीं ये तो आपको पैक करो और फिर से पूरा वीडियो देख लेना, फिर से ये टॉपिक या पूरा वीडियो आप देख सकते हो। ओके, एटॉमिक नंबर आपको वापस सुनना है तो वापस सुनो, लेकिन अच्छे से समझ के लो ईच एंड एवरी टॉपिक, यू शुड बी अंडरस्टैंड इट्स। वीडियोज है, वीडियोज आपको पॉज करके बैक करके वापस रिपीट सुन सकते हो, मैंने क्या बोला, कैसे फाइंड किया, ये आप सुन सकते हो। ओके, इट्स अ बेनिफिट टू यू। See the next one. Note compound having En equal to nearest inert gases are more stable than the others. Inert gases means these are given in a zero group element. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, all the other inert gases. And compound having En, effective atomic number, is equal to, and nearest inert gases are more stable. And किसी भी कंपाउंड में सेंटर मेटा एटम का इफेक्ट एटॉमिक नंबर वो इक्वल टू किसके साथ है? नेरेस्ट इनर गैस के साथ है, तो वो क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा। इसकी स्टेबिलिटी हम और भी डिफरेंट मेथड से हम निकालने वाले हैं, इसका ऐसे मत लो, स्टेबिलिटी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं उसको। तो स्टेबल किसको बोलते हैं? जिसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जो किंग है, नोबेल है। ऐसे नोबेल एलिमेंट कौन है? जीरो ग्रुप वाले। आराम से बैठ खाते, कोरोना आया कुछ भी आया तो उनको कोई टेंशन है क्या? नहीं है, सब कुछ वहां पे आराम से मिलेगा, किसी के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है, एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। दे आर द नोबेल्स, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, राइट। नेक्स्ट, फाइंड En of this compound. यहाँ पे सेंटर मेटा एटम कौन है? निकेल। सो यू मस्ट बी नो द कोऑर्डिनेशन नंबर as atomic number of the nickel is equal to 28. CO कौन है? नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स है, चार्ज के ऊपर कितना होगा? -1। एट इज FeCN6 4 माइनस। आपको यहाँ पे सबका, यहाँ पे Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? यहाँ पे 26 है, मैं Z26 लिख के दे रहा हूँ। आपको फटाफट इसको क्या करना है? फाइंड करना है। CONH3 3 प्लस, यहाँ पे Z इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट ZnNH3 2 प्लस Z कितना है यहाँ पे? 30। नेक्स्ट PT प्लेटिनम का है 78, CO का है यहाँ पे 29, Zn इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है? 30। यहाँ पे K4 है, K होना चाहिए। पोटेशियम कितना है? 26, यहाँ पे Q आ गया, K4 करना है यहाँ पे। लास्ट भी वहां पे भी मिस्टेक हुआ था ना। K4 कर दिया। 26 आपको यहाँ पे EPT एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। पॉज द वीडियो, लेट्स स्टार्ट टू फाइंड इट्स एकदम मोर एग्जांपल टू फाइंड इट्स 24 26 27 30 इनका क्या दिया है? एटॉमिक नंबर। अभी सेकंड वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे Fe, यहाँ पे FeCN6 CN साइनाइड, Y यहाँ पे Y मिलेगा आपको, Y इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12 आ गया। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? Fe ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे Fe का X लिया, CN का -6 और ये कितना आ गया? 2, यानी कि ऑक्सीजन नंबर X का वैल्यू आपके यहाँ पे कितना आ गया? 2 और 26 क्या है? Z। तो फॉर्मूला क्या हो गया? Z माइनस एक्स प्लस वाई, Z माइनस एक्स प्लस वाई। तो Z कितना है? 26 माइनस एक्स कितना हो गया? 2 24 और उसमें से ऐड करो कितना? 12। 24 प्लस 12 कितना हो गया? 24 प्लस 12 36 हो गया। मीन En of this Fe is equal to what? 36। सिंपल है, right? In this way you have to find the En, effective atomic number of each center atom from this example. Are you ready for this? रेडी है सब लोग? आप भैया निकालने के लिए फटाफट निकालो सब लोग।
नाउ चेक द आंसर। आपको अपना आंसर चेक करो, वीडियो पॉज करके आंसर निकाला होगा तो आपको आंसर चेक करना है। यहाँ पे आपको पॉज करके पूरा आंसर निकालना, उसके बाद आगे देखो। पहले देखो मत। आंसर या फर्स्ट देखो, 28 minus 0 plus 8, check your answer, is equal to 36. सेकेंड एग्जाम्पल जो आपको अभी मैं एक्सप्लेन किया था, उसका कितना आ रहा, 36 आ रहा था, राइट ना। 36 ये क्या है, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, आर्गॉन के बाद कौन है, क्रिप्टॉन। इसका कितना 36 है ना। 36 मतलब क्या हो गया, नियरेस्ट टू द इनर्ट गैसेस, यानी इक्वल टू द इनर्ट गैसेस। तो ये क्या बन गया, स्टेबल, राइट। फर्स्ट कंपाउंड सेकंड कंपाउंड क्या हो गया, स्टेबल बन गए। समझा ना। देखो स्लाइड में वहां पे देखेंगे आपको, यहाँ पे मैं एग्जांपल जो दिया था, यहाँ पे FeCN6CO, इसका कितना 36, इसका भी कितना आ गया 36 आ गया। अब इसके आगे के अपने फाइंड क्या होगा, चेक इट, आप आंसर आपका चेक करना वहां पे, ENZ minus x plus y, next 27 minus 3 plus 12, so next है 39 minus what is the 3 is equal 36। सब अपना अपना आंसर चेक करो फटाफट। राइट है, फिफ्थ वन 86 आ रहा है, 61, check your answer, check your answer, EAN, effective atomic number of the 6, question number 6, 35। next 7, क्वेश्चन नंबर 7 का देखो कितना आ रहा है, 28 plus 3 36, 81 38 minus 2 is equal to 36। if it at numbers of the Z, 9th one 24 0, यहाँ पे देखो 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 आ रहा है, राइट। 36 है, मोस्टली 36 ये देखो। ओके, जो भी आपने निकाला होगा आंसर, चेक किया होगा सबने, आर यू चेक इट्स, सबने चेक किया ना। ओके, सबका राइट है, रॉन्ग होगा तो वहां पे करेक्शन कर देना। जहां पे आंसर मैंने निकाल के दिखाया वहां पे आप करेक्शन कर लो। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग पढ़ना है, नेमिंग, हाउ टू गिव द नेम टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेमिंग कैसा किया जाता है, वो देखो शीट्स। First, if complex is a positive charge or neutral, complex what, positive charge or the neutral, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है तो उसका नेमिंग कैसा, या कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल होगा तो उसका नेमिंग कैसा करेंगे। इफ कॉम्प्लेक्स इज अ पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल तो नेमिंग अलग रहेगा, एंड कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका नेमिंग क्या होगा, अलग होगा, राइट। फिफ्थ, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज अ पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल, देन नेमिंग। फर्स्ट राइट नंबर ऑफ लिगेंड्स, दैट वाज द नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं वो लिखना है पहले। नंबर ऑफ डाई है तो 2, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, एंड सो ऑन, हेक्सा, पेंटा, हम पता है आपको, राइट ना, केमिस्ट्री पढ़े ना। तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, डेका सब आना चाहिए। राइट नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स है फर्स्ट स्टेप लिखना है। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर अच्छे से याद होगा। एक तो ऑर्गेनिक का नाम आप भूल सकते हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग नहीं भूलेंगे आप, गारंटी है, रूल है मेरा, ये रूल्स फॉलो करो। These are the steps you should be follow it. Write the name of ligands. If more than one ligands exists, write them in alphabetical order. Amine, aqua, amine का AM, aqua का क्या AQ, तो कौन पहले आएगा, amine आएगा पहले। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, इथिलीन डायमाइन है और अमोनिया है तो अमाइन पहले आएगा, बाद में इथिलीन डायमाइंस। ओके, साइनाइड है, साइनो है, कार्बोनिल है, कार्बोनिल और साइनो है, कार्बो CO, साइनो CY, कार्बोनिल पहले आएगा, CO मींस राइट द नेम ऑफ लिगेंड। सब हेट्रोलिप्टिक है, लिगेंड्स है हेट्रोलिप्टिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर देयर अटैच्ड टू सेम सेंटीमीटर एटम, देन यू शुड बी फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे क्या होगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगी, राइट ना, नेमिंग में क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट रूल, राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मैटर एटम, कौन है सेंट्रल मैटर एटम, उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखना है। जब कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन 3 है तो 3 क्या होगा, रोमन नंबर में आएगा, 3 नंबर
इंटरनेशनल नंबर पे लिखने का नहीं है, आपको क्या लिखना है, रोमन न्यूमरल सी यूज करना है। फर्स्ट क्या है, राइट द नेम ऑफ लिगैंड्स, सेकंड व्हाट इज राइट द नेम ऑफ लिगैंड्स, राइट द नंबर ऑफ लिगैंड्स, राइट द नेम ऑफ द लिगैंड्स, राइट द नंबर ऑफ लिगैंड्स फर्स्ट, देन राइट द नेम ऑफ लिगैंड्स, then write the name of central metal atom with its oxidation state. Okay, next finally write the name of anions. जैसा क्लोरीन है तो क्लोरो, क्लोराइड्स, फ्लोरो, फ्लोराइड, ब्रोमीन, ब्रोमो, ऐसा नाम आएगा। फाइनली राइट द नेम ऑफ द एनायन, मतलब नेगेटिव आयन जो भी रहेंगे उसके साथ। यानी पॉजिटिव चार्ज लिगैंड है तो उसके साथ कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज लिगैंड है, नेगेटिव चार्ज आएगा ना वहां पे। लिगैंड कंपाउंड ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कंपाउंड के ऊपर चार्ज क्या पॉजिटिव है तो उसके साथ कौन आने वाले हैं, एनायन आएंगे, राइट ना। और कंपाउंड जब नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ क्या आएंगे, कैटायन, सब पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये आएंगे वहां पे। समझ में आ रहा है क्या, मींस फाइनली राइट द नेम ऑफ द एनायन। फर्स्ट क्या लिखना है आपको, राइट द नंबर ऑफ लिगैंड, देन राइट द नेम ऑफ द लिगैंड। लिगैंड का नाम लिखते समय आपको कुछ चेंजेस दिया मैंने स्टार्टिंग में, उसका यूज यहाँ पे होगा, याद रखो। आपके सामने है ना बुक में लिखा हुआ, तो उसको फॉलो करो। And then write the name of central metal atom followed by the oxidation state, and finally write the name of the anion. Next example शी, यहाँ पे अब एग्जाम्पल लिखेंगे। अभी यहाँ पे फर्स्ट राइट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड्स हियर, Na3 कितना है, 6 लिगेंड्स सर। राइट द नेम ऑफ द लिगेंड हु, Na3 को क्या बोलते हैं, अमाइन, Na3 कॉल्ड द अमाइन, दैट इज आंसर हियर। फर्स्ट नंबर ऑफ Na3 6, name of ligand is a amine. Next here central metal atom is a cobalt, oxidation state किसका कितना है, 3, and then name of anion is a chloride. अब इसका नाम क्या होगा, देखो नाम क्या होगा, 6 है तो क्या होगा, हेक्सा, कौन है, अमाइन, हेक्सा अमाइन। इसके बाद क्या है, कोबाल्ट, ऑक्सीजन का 3, और उसके बाद क्लोराइड। नेम क्या होगा, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट ब्रैकेट रोमन नंबर 3 क्लोराइड, हो गया, समझा, बहुत सिंपल है। अब ये रूल फॉलो करेंगे, 4 स्टेप है, 1 2 3 4, 4 स्टेप फॉलो किया, आपको यहाँ पे नाम आ गया, बस देखो ये आ गया आपके सामने, आपके कंपाउंड का नाम है ना, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट ब्रैकेट 3 क्लोराइड्स। आप इसको भूल सकते हैं क्या, पड़ेगा, फॉरगॉट इट्स, नो नो, ओके। राइट नंबर ऑफ लिगैंड्स, देन राइट नेम ऑफ द लिगैंड्स। नेम अलग अलग डिफरेंट लिगैंड्स है तो उनका क्या करना है, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। उसके बाद क्या आएगा, सेंटर मेटल एटम आएगा, किसके साथ, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर क्या आएगा, एनायन, फिर आएगा आपको एनायंस। नेक्स्ट CrNH3 Cl3, नंबर ऑफ लिगैंड इज 3, नंबर ऑफ H2 इज इक्वल टू 3, लिखा। नेम ऑफ लिगैंड आर अमाइन एंड एक्वा, ओके, लिगैंड्स आर अमाइन, अमाइन NH3 को क्या बोलेंगे, अमाइन, H2 क्या बोलेंगे, एक्वा, ओके। सेंटर मेटल एटम इज Cr, ऑक्सीजन स्टेट इज इक्वल टू 3, राइट। नेम ऑफ एनायन कौन है, क्लोराइड, तो नाम क्या होगा इसका, 3 अमाइन, ट्राई अमाइन, ट्राइक्वा, तो पहले ट्राई अमाइन ट्राइक्वा, राइट। सेंटर मेटल एटम कौन है, क्रोमियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन नंबर 3 और क्लोराइड्स, तो नेम आ गया इसका ट्राइअमाइन ट्राइक्वा क्रोमियम ब्रैकेट 3 क्लोराइड्स, ओके, समझा, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट। नेक्स्ट, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ नेगेटिव चार्ज, ये भी देखो, राइट द नेम ऑफ द कैटायंस। पहले क्या आएगा, नेम कैटायन के, वहां पे एनायन का नाम क्या होगा, लास्ट में था, लेकिन यहाँ पे कैटायन का नाम पहले आएगा, पहले प्रमोशन किसको दिया है, कैटायन को दिया है। देन राइट द नंबर ऑफ लिगैंड, सेम रूल फॉलो करना है, write the name of ligand if more than one alpha, follow the alphabetical order, right, as the complex ion is the anion, then metal end with the suffix 8t followed by the oxidation state, सा chromium तो क्या बनेगा, chromiate, फेरस का बनेगा फेरेट, ate होगा, सफिक्स क्या आएगा यहाँ पे, ate, कोबाल्ट कोबाल्टेट, क्या आएगा, कोबाल्टेट, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन एग्जांपल K4, यहाँ पे K4 देखो, K4 इज व्हाट्स, कैटायंस, ये फी फेरस का फेरेट होगा,
साइनाइड का साइनो 6 बराबर, यानी पोटेशियम। यहाँ पे नंबर कोई लिखने की जरूरत नहीं, पोटेशियम ही होगा। कितने नंबर 4 होंगे, 5 हो गए, 6 हो गए, तो भी क्या होगा, पोटेशियम। नेम ऑफ कैटायन इज पोटेशियम, नंबर ऑफ CN इज 6। CN को क्या बोलते हैं, साइनाइड। सेंट्रोमेटर एटम कौन है, साइनाइड को क्या होता है, साइनो। याद रखो, याद रखो, लास्ट में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया उनका नेमिंग में क्या चेंजेस होता है, हाउ इट कैन बी चेंज, साइनाइड चेंज टू साइनो। साइको नहीं, साइनो बोलो। सेंट्रोमेटर एटम कौन है, फेरस का क्या होगा, फेरेट। ऑक्सीजन स्टेज का कितना है, +2। कैसा निकाला, यहाँ पे दिखाया मैंने, देखो नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, ब्रैकेट में रोमन नंबर क्या हो गया, 2। समझा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल के बारे में, आपको लिगेंड के बारे में, हाउ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेम, नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डू यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक से मिलेंगे, वो आप कॉपी कर सकते हो, आगे मैंने लेक्चर में वीडियो में दिया हुआ है। सो ऑल ऑफ यू वॉच इट क्लियरली। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम नॉमेनक्लेचर, एल्यूमिनियम क्या क्या होगा, एल्यूमेट होगा। क्रोमियम का होगा, क्रोमेट। कोबाल्ट का कोबाल्टेट्स, कॉपर का क्यूप्रेट्स। ये भी आप कॉपी कर देना। ओके, सब लिख के रखो बुक में। फेरस का फेरेट्स, लीड का प्लम्बेट्स, मैंगनीज का मैंगनेट्स। कैसा, AT होगा, AT चेंज नेम, कैसा वो भी दिया आपको, ये आप बुक में लिख के रखना। डोंट फॉरगॉट हिज, मिलेगा आपको कहाँ नहीं। इज मेड बाय ओनली बाय द आंसर। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आपको सामने बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसको नोट डाउन करना, कैसा नाम आ गया आपको भी सबको पता है, समझ में आ रहा है ना। इसको मैं और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का। सो टिल नाउ ऑल ऑफ यू कॉपी इट इन नोटबुक यूवर्स, प्रैक्टिस शीट, जितना भी आपको आज टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड हाउ टू गिव द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया है। आप उसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखो एंड केयरफुली अंडरस्टैंड इट्स। अभी भी कोई डाउट है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हो नेक्स्ट डे और नेक्स्ट लेक्चर, before next lecture you can ask me the any doubt here. Okay, now till bye bye. Okay, see you next lecture. Okay, bye till now.